Good morning guys from Lachin. This is the fourth video. If you have stayed till here, thanks a lot and please like the video, subscribe कर दीजिए अगर आप अब तक आपने किया नहीं है. It will help me a lot. दोस्तों मैं चेकआउट कर चुका हूँ अभी इस ट्रैवलर्स ऑफ सिक्किम से. Although it was not very good, but it had all the basic amenities, and I'll be going to Gurudongma today from Lachin, and this is the most enthralling part of this journey for me. This is what I've came here for, apart from all the work that I have. This is what I've come here for. So मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आज गाड़ी में बैठने की बारी मेरी पीछे है. उन्होंने तो मुझे बाकी सबने कल आगे बैठने दे दिया, बट आज पीछे बैठूँगा. तभी मैं खुद तो अच्छा सिनेमाटोग्राफर या जो भी उसे कहते हैं, सिनेमैटिक वीडियोस अच्छी लेता हूँ, तो पीछे से भी ले लूँगा, कोई गल नहीं है. आज शायद मैं अपनी फ़ोटोज़ उतनी ना लूँ जितना मैं गुरुडोंगमार के पीछे पागल हूँ. तो स्टे ट्यून. But before that, watch this. This was the first shot that I took right after waking up in Lachin, and the morning was as beautiful as anything could be. This was the most beautiful morning that I have ever experienced in my lifetime. And about these snow-capped mountains, I'm still wonderstruck. I took a quick walk of Lachin and saw some really amazing things like this wonderful hotel while I was going for a walk. And then the Summit Resort, which you can all see. Dude, I'm pretty sure the next time when I'll not be in a budget trip, I'll book this amazing area. And then I got a call from the driver to come back near the homestay. पता है इन पहाड़ों की सबसे खास बात मुझे क्या लगती है? ये चीज़ काफ़ी तृप्त हो जाता मन. इनफैक्ट पिछली रात को ऐसा हुआ, कमरे के अंदर, कंबल के अंदर ये धुआं निकल रहा था मुझसे. ऑफकोर्स बहुत स्टूपिड बातें कर रहा हूँ, बट यार आप भी यहाँ आके देखो, आप भी पागल हो जाओगे. मैं आधा पागल हूँ, पूरा पागल कर दिया है मुझे इस गांव ने, इस शहर ने, सिक्किम ने. आई डोंट नो मेरे व्लॉग का आउटकम क्या होगा. मैंने कभी इतनी लंबी व्लॉगिंग की नहीं. एक सेट पे मुझे पूरा वीडियो तैयार करना होगा 10-11 मिनट का. आई डोंट नो हाउ गुड आई एम, बट आई हैव टेकन सम अमेजिंग शॉट्स which might balance these things out. So wish me luck for that as well. तो नॉर्थ सिक्किम रोड ट्रिप का एक और मन मोह लेने वाला सफ़र हो चला था शुरू, और मेरे जहन में बस एक ही बात थी. I can't believe I'll be on my way towards Gurudongmar. And I knew today's journey was going to be unpredictably beautiful. To be really honest, Lachin was just growing on me at this point of time, and the contrasting views were the addition. And the cloudy mist that appeared on the mountains was just the thing that we needed but didn't realize. Every time that I was watching a bundle of flags on the road, I was getting more excited for my destination to arrive. Also, I must appreciate one thing, which is building roads at such a high altitude is not easy. But Sikkim government and Brother Road Organization made it much easier for the tourists to travel all around North Sikkim. And while appreciating the views, we stopped at a point for having a quick breakfast. Approximately 1.5 घंटे का सफ़र पार करके अभी हम लोग एक स्टॉप पे रुके हैं जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा अलॉन्ग विथ अदर्स. हालांकि मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं है, सो आई थिंक मैं नहीं करूँगा. आई हैड हॉट चॉकलेट इन माई रूम, आई हैड पैकेट्स ऑफ इट. तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ठंड अराउंड 7-8 डिग्रीज होगी कुछ, एंड मिस्ट तो इतना है कि कुछ भी नहीं दिखेगा. येट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ. Okay, so this place was legit mesmerizing. Meanwhile, when everyone was hungry and having their breakfast, I was busy taking these cinematic shots of this really amazing place. And then गाड़ी में ही बैठे एक आदमी को मैंने कहा कि मेरी कुछ वीडियोस और फोटोज ले ले. While you are watching this, I would like to tell you कि हमने अपने ड्राइवर को एक्सक्लूसिवली पे करके काला पत्थर इंक्लूड करवाया अपने पैकेज में. Because it suddenly struck my mind कि वहाँ पे बर्फ पड़ती है और मुझे लाइव स्नो देखनी है. So here it is. आप ही कहिए इस जगह और कौन सा गाना जहन में आता. स्नोफॉल राइट, ऑब्वियसली अब हो रही है ना स्नोफॉल. प्रॉब्लम क्या पड़ती है एक सोलो ट्रैवलर को, पता है वो हर जगह कैंप स्टैंड लगा नहीं सकता. मैं लाया तो था बट मुझे रखना पड़ा वहीं पे होटल पे, क्योंकि यहाँ पे किसी जगह में कैंप स्टैंड नहीं लगा सकता. तो मुझे ऐसे ही हैंड हेल्ड रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ड्रोन मेरे पास है नहीं, DSLR लाया नहीं, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. बट येट उसके बावजूद जगह कितनी खूबसूरत है, सब कुछ सही है.
मैं ऐसे में भी मैनेज कर ले रहा हूँ। तो कुछ अच्छी सिनेमैटिक वीडियोस आई गई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड मेरे उस काला पत्थर आने वाले फैसले ने हम सब का दिन बना डाला, क्योंकि मई में लाइव स्नो आसानी से नहीं दिखती। एंड what you see right now was the most amazing thing I was experiencing in my lifetime. इन खूबसूरत रास्तों को पार करके यहाँ पहुँचते ही मुझे एहसास हुआ कि सिक्किम आके मैंने सबसे अच्छा काम किया। मुझे फिर से उड़ चला याद आ रहा है यार, और भी गाने जो मैंने स्नो पे देखे सुने, सब कुछ ये कुछ और ही है, मैं बयान नहीं कर सकता यार। फ़िलहाल यार इससे बेहतर कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरी ज़िंदगी का अब तक। मेरी 22 साल की ज़िंदगी में इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है जब मैं स्नोफॉल होते हुए इन पहाड़ों को देख रहा हूँ काले पत्थर में। तो काला पत्थर के पहाड़ों में मैंने मैगी खाई, कॉफ़ी पी एंड अपने ट्रिप वाले दोस्तों के साथ फ़ोटो ली। और अफसोसन वक्त हो चला था काला पत्थर को गुड बाय कह के गुरु डोंगमार लेक के लिए रवाना होने का। The transition from the brown rocky mountains to this icy grey peaks was just as mesmerizing as anything could be. And taking on this highway, we were on our way towards Guru Dongmar Lake, and the physical terrain says it all. I was just perplexed by the majestical route of Guru Dongmar Lake, which was just 30 minutes away from here. And in almost like no time, I reached Guru Dongmar Lake. यहाँ पे बात करना उतना अलाउड नहीं है गाइस, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो शायद कुछ सुनाई ना दे। बस गुरु डोंगमार में हूँ, देख लीजिए नज़ारे। हालांकि मैं सिनेमैटिक शॉट्स कुछ लूँगा और सीधे गाड़ी में बैठूँगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हो ही रही है क्योंकि मैं काफ़ी स्टंट हूँ इस जगह से, बट ज़्यादा स्टंट हुआ तब मैं मर जाऊँगा। जो ख्वाब मैंने 4 साल पहले बुना वो आज पूरा हो रहा था गुरु डोंगमार लेक में। All that travel that I did and all the hustle I had to make to reach here was worth it. I couldn't ask God for more other than visiting this place every year again and again. Well, it was time to go back from where I started in the morning. And while leaving the place itself, I knew I had a lot of memories to recall. Although I was shivering with cold and was facing breathing issues, I wanted to stay here because this place was legit mesmerizing. On our way back, we were really near to the Tibetan maritime borders. After all this, Lachin was 1.5 hours away from here where we would have to take our lunch. लाचन में हम लोग लंच कर चुके हैं, निकल रहे हैं फॉर लाचुंग। बीच में हुआ क्या था कि मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो गई थी गुरु डोंगमार जाके, तो मतलब मैं पूरे सही तरीके से रह ही नहीं सका। जैसा आप लोगों ने देखा, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे जो मैंने दिखाया आपको, बट वो भी काफ़ी मुश्किल हुई लेने में। बट खैर, लेट्स ड्राइव टूवर्ड्स लाचुंग नाउ, जो कि यहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता है। एंड अभी 4 बज रहे हैं, तो आई होप अराउंड उसी टाइम में लाचुंग पहुँच जाएंगे, कल जितने टाइम में लाचन पहुँचे थे। The lunch was extremely delicious and tempting, and it was time to say goodbye to Lachung. And now we were heading towards Lachung, but I didn't record a lot of it because the roads were just the same when we were reaching Lachung. So consider that we teleported to Lachung, and it was just wow. हाय गाइस, वेलकम टू लाचुंग। मुझे ये रूम मिला है जिसमें मुझे मिले हैं डबल बेड, जिसमें से मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है और वो सिर्फ ये एक भी काफ़ी रहता, बट मुझे ये मिला है तो मैं इस पे ही सोऊंगा। अराउंड अभी 7 बजने वाले हैं एंड लाचन से पहले ही मुझे यहाँ पे छोड़ दिया गया है। एक्चुअली 4 दोस्त जो थे मेरे साथ ट्रिप पे, वो वापस यहाँ से चले गए जहाँ से वो लोग आए थे, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था। सो दे लेफ्ट द ट्रिप इन बिटवीन। एंड अभी मुझे जो रूम मिला वो तो मैंने आपको दिखाया ही। सो इट्स नाइस। अभी अराउंड 8 बजे तक यहाँ पे डिनर सर्व होना शुरू हो जाएगा, जाके कर लूँगा। हमारे साथ और 2 कपल्स थे अब विथ 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि एक्चुअली मेरे ट्रिप पे ही मतलब ऐसे जान पहचान हो गई। तो फिलहाल तो वो चले गए, तो सिर्फ ये 2 कपल्स बचे। हम लोग गाड़ी पे सिर्फ 5 लोग हैं। आज तो खैर मेरे 4 दोस्तों ने मुझे कह दिया कि हाँ जाओ, तुम सामने बैठ ही जाओ, वहीं से रिकॉर्ड कर लो क्योंकि तुम अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हो वगैरह वगैरह। कल के दिन मैं बस सिर्फ और सिर्फ पीछे सो के जाने वाला हूँ और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँगा। युमथांग वैली जाके मेन रिकॉर्डिंग करूँगा, बिकॉज आज जो चार्ज का मसला हुआ है मैं क्या ही कहूँ। गुरु डोंगमार सही से मैं कर ही नहीं पाया। खैर वहाँ तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी मुझे चार्ज कॉन्शियस होकर चलना पड़ा पूरे ट्रिप में। सो या
लेट्स सी व्हाट्स एट द डिनर एट 8. टिल देन मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ. बाय द वे, आई हैव नोटिस वन अमेजिंग थिंग विच इज़ पिछले 3 दिन से जिस गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा हूँ उसका जो नंबर प्लेट है इज़ माई बर्थ डेट 0627 27 जून. वाओ, आई डिडंट न्यू इट. कुछ भी नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स, बट मुझे जो यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं इट इज़ अमेजिंग. होटल्स है कुछ बहुत अच्छे अच्छे, शायद 1-2 5 स्टार भी. डिनर कर चुका हूँ. इट वॉज क्वाइट हॉट सर्विंग. इट वॉज काइंड ऑफ ओके. 6 बजे वापस से कल उठना है जाने के लिए यूमथांग वैली, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. तो फिलहाल तो अब मैं चलता हूँ सोने को. रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं. कल सवेरे मुझे 6 बजे उठना है. तो लेट्स होप आई हैव अ ग्रेट डे टुमारो. गुड नाइट एवरीवन. Good morning everyone. This is my 4th day as you know it, and I'm currently in Lachung, and I woke up to this. It was by far the best view from any of my stays till yet. दोस्तों मैं लाचुंग के स्टे से चेकआउट कर ही चुका हूँ. मेरा ड्राइवर आने ही वाला होगा. आपको मैंने कुछ अमेजिंग शॉट्स तो दिखाए लाचुंग के. दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इसके पिछले वाली भी मेरी सारी वीडियोस देखे एंड लाइक देम एज वेल. चलते हैं फिर, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड. जो मेरी 5वीं वीडियो होगी उसकी जर्नी होगी फ्रॉम लाचुंग टू यूमथांग, एंड देन आई विल बी ट्रांसफर टू गैंगटॉक. देन मैं वहाँ से जाके जो गैंगटॉक में मज़े करने वाला हूँ, गैंगटॉक से नाथुला पास और चांगू लेक, ये सारी जगह हैं जो जाऊँगा. एंड देन आई विल बी गोइंग टू दार्जिलिंग. तो ये सारी चीज़ें होने वाली आगे की वीडियोज़ में. कीप फॉलोइंग मी एंड टेक केयर. बाय बाय. Thank you for watching and stay tuned for the adventure ahead.